الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی و کبریائی اس اللہ رب العالمین کی لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اور اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اپنی بیش بہا قیمتی انعام و اکرام سے ہمیں اور آپ کو نوازا. یقیناً تمام طرح کی تعریفات اس اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہیں اور ہونی بھی چاہیے، کیونکہ وہ ہمارا اور آپ کا اور پوری کائنات کا وہ مالک ہے، خالق ہے اور رازق ہے، جس کی توفیق اور جس کے فضل سے اور جس کی رحمت سے یہ پروگرام مسلسل انعقاد ہو رہا ہے. اور اللہ رب العالمین نے چاہا اور ہماری اور آپ کی محنت شامل حال رہی تو انشاءاللہ العزیز ایک دن ہم اختتام کو بھی پہنچیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس سے پہلے درس کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر 242 242 تک بات مکمل ہو چکی تھی اور انشاءاللہ آج کے درس میں سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 سے لے کر 247 یعنی 243 سے 247 تک آیات کا ترجمہ و تفسیر آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی. یہاں پر درس کی شروعات سے پہلے چند باتیں جو ہے میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں جس کا تعلق براہ راست اسی درس سے ہے. اور یہ باتیں دونوں طرح کے لوگوں کے لیے، چاہے وہ آن لائن ہو یا آف لائن. سب سے پہلے درس کی جو شروعات قریب سال بھر پہلے کی گئی تھی، تو جو چیزیں بنیادی طور پر محسوس کی گئی کہ آخر ہم کیوں درس قرآن کے سلسلے کو شروع کیا ہم نے. اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنے آپ سے سوال کرے کہ اس سلسلے کو ہم نے شروعات کیوں کی، کیوں شروع کیا ہم نے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی یہی جواب دے گا کہ شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کیونکہ ہماری اور آپ کی جو زبان ہے وہ عربی نہیں ہے. البتہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوئی ہے. عربوں کے لیے یہ اردو کی طرح، جیسے ہم میں سے کوئی اردو جانتا ہے، کوئی ہندی جانتا ہے، اور اس زبان میں اگر قرآن نازل ہو جائے تو ویسے جیسے ہر چیز سمجھ رہا ہے یا بات چیت کر رہا ہے. لیکن ہم لوگ چونکہ عربی نہیں جانتے، اسی مقصد کے تحت اس درس قرآن کا جو سلسلہ شروع ہوا کہ ہم قرآن کو معنی، ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ سکے کہ اللہ نے اس میں کیا بیان کیا ہے. تو یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے درس قرآن کی شروعات کی. لیکن اس میں ایک مقصد اور میں جوڑ دینا چاہتا ہوں، اور یہ تمام سامعین کے لیے بھی ہے اور ناظرین کے لیے بھی ہے، کہ ہمارا ایک یہ بھی مقصد ہو کہ قرآن کا جو آیت کا ترجمہ ہم سمجھ گئے، ہم جان گئے، جس کو ہم نے پہچان لیا، اب ہم اپنی زندگی کو اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. یہ بہت بڑا مقصد ہے کہ اس سے پہلے ہم کسی چیز کو نہیں جانتے تھے تو نہیں کرتے تھے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اپنے علم، ہمارے اور آپ کے علم میں اس چیز کو لا دیا. بہت ساری چیزیں ہم نے پیچھے دیکھی، بنی اسرائیل کا واقعہ، منافقین کا تذکرہ، مشرکین کا تذکرہ، اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری باتیں ہم نے پچھلی آیت کے اندر دیکھی. تو ہمارا آپ کا یہ بنیادی مقصد ہونا چاہیے، اول یہ کہ ہم قرآن کا درس اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس میں اللہ کے پیغام کو جان سکیں، اور اللہ نے اپنے پیغام میں جو کچھ کہا وہ ہم سے مقصد ہے عمل کرنا، عملی جامہ پہنانا. اللہ کا یہی بنیادی مقصد ہے کہ ہم مسلمان قرآن کے مطابق عمل کریں. تو یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے اور دعا بھی ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جو علم ہمارے اندر آ چکی ہے، جو چیزوں کو ہم جان چکے ہیں، تو اس کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے. اور جو آیات گزری ہے، جن چیزوں کو منع کیا گیا ہے، اللہ اگر وہ چیزیں ہمارے اندر ہے تو اس کو ہمارے اندر سے ختم کر دے. آمین. سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 243 اللہ نے کہا الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت. کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا
جو 1000 کی تعداد میں تھے، جو ہزاروں تھے اور موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہوئے تھے. فقال لهم اللہ موتو، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ مر جاؤ، تو مر گئے. ثم احیاہم، پھر اللہ رب العالمین نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت اللہ کی شکر گزاری نہیں کرتی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ جن لوگوں کا تذکرہ یہاں پہ ہے، تفسیر کی کتابوں میں کوئی خاص ذکر نہیں ہے کہ کن کا واقعہ ہے، کس امت کا ہے، کس نبی کے قوم کا واقعہ ہے. البتہ تفسیری روایت بہت ساری ہے. یہ پتہ ہے کہ سابقہ امت کا معاملہ ہے. وہ کون لوگ تھے جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نکل کھڑے ہوئے، جن کی تعداد ہزاروں میں تھی. لیکن صحیح طور پر، حقیقی طور پر تفسیر کی کتابوں میں خاص ذکر نہیں ہے کہ یہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ ہے، کہ امت محمدیہ کا واقعہ. یہ خاص طور پر ذکر نہیں ہے. البتہ اس سابقہ امتوں میں بھی کسی امت کا تذکرہ ہے. اس میں ایک نبی ہے جن کی دعا سے دوبارہ زندہ کیے گئے، ان کا نام حزقیل بیان کیا گیا ہے. حزقیل، ہاذا بڑی کاف یا لام، انہی کا یہ تذکرہ ہے. اللہ نے کہا کہ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف حذر الموت، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے خوف سے، موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نکل آئے. سابقہ امت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس میں اس نبی کا ذکر ہے جن کی قوم تھی ہے وہ حزقیل تھے علیہ السلام. اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ یہ لوگ موت کے ڈر سے یا کسی تعاون کی بیماری پھیل چکی تھی تو اس سے اپنی جان کو بچانے کے لیے اس علاقے میں اللہ نہ کرے تعاون کی بیماری پھیل گئی تو ڈر سے اپنے گھروں سے نکل کر بھاگنے لگے کہیں وہ بیماری ہمیں نہ مل جائے یا ہمیں نہ لگ جائے. تو اسی مناسبت سے اپنی جان کو بچانے کے لیے یہ اپنے گھروں سے نکل ہے. دو واقعہ ذکر ہے، ایک ہے موت کے خوف سے اور ایک ہے تعاون کی بیماری پھیل گئی تھی تو اس خوف سے یہ اپنے گھروں سے نکل آئے. اللہ رب العالمین نے بیان کیا، دو تین چیزیں اللہ نے یہاں بیان کی. پہلی بات یہ کہ موت مسلم ہے، کوئی بھی آدمی موت سے نہیں بھاگ سکتا. اس دنیا کے اندر کوئی ایسی جگہ اللہ نے نہیں بنائی ہے جہاں پر جا کر کوئی انسان موت سے بچ سکتا ہے یا وہاں پر اس کو موت نہیں آئے گی. تو اللہ نے یہاں پہ یہ درس دیا کہ جو ہزاروں کی تعداد میں، اور ایک اور تذکرہ کیا گیا ہے کہ جہاد کا حکم ہوا تھا. حزقیل علیہ السلام نے کہا کہ اب مشرکین اور کافرین سے لڑنے کا وقت آ گیا ہے تو جہاد کیا جائے. تو یہ جہاد میں کہیں گئے اور قتل نہ ہو جائے اس ڈر سے بھی گھروں سے باہر نکل کے بھاگے. یہ بھی ایک واقعہ ذکر کیا گیا. تو اللہ نے ایک بات ہی یہاں بیان فرمائی کہ موت سے چھٹکارا کسی کو نہیں. اس کائنات کے اندر بلکہ خود دنیا جو بنائی گئی ہے اس دنیا کو بھی ایک دن فنا ہونا ہے. ہم تو انسان اس میں رہتے ہیں لیکن ہم آج ہے کل نہیں رہیں گے. ہم سے پہلے بہت سے لوگ تھے، آج وہ نہیں ہے. ہمارے دادا پردادا یا ان سے پہلے کی نسلیں، ہمارے بعد کی جو نسلیں آئیں گی وہ بھی نہیں رہیں گی. قیامت کے دن ساری چیزوں کو مرنا ہی مرنا، ہر انسان کو، کوئی زندہ نہیں رہے گا. تو ایک یہ بات اللہ نے بیان کی کہ موت سے کیوں بھاگ رہے ہو، موت تو آ کے رہے گی. دوسرا درس اللہ نے یہاں پہ یہ دیا کہ جب یہ بھاگنے لگے فقال لهم اللہ، تو اللہ نے ان سے کہا موتو، مر جا. اللہ نے موتو کا مر جاتی، سب کے سب مر گئے جو ہزاروں کی تعداد میں تھے. یہ اللہ نے ذکر کیا کہ وہم الوفن، ہزاروں کی تعداد میں تھے وہ. اللہ نے کیا کہا ان کو؟ اللہ نے کہا موتو، مر جاؤ. تو ان کے نبی نے حزقیل علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ ان کو دوبارہ تو زندہ کر دے. یہ تیسرا درس ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر مطلق ہے کہ دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے. یہ انسانوں کے ہاتھ کی بات نہیں ہے کہ انسان چاہے تو دوبارہ موت دے دے یا زندہ کر دے، دوبارہ زندہ کر دے. یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. کسی کی زندگی یا موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ چاہے تو کسی کو زندہ کرے، اللہ چاہے تو کسی کو موت دے دے، اور اللہ ہی چاہے تو دوبارہ زندہ کر دے اسی دنیا کے اندر. تو دیکھیں اللہ رب العالمین نے دیکھا کہ یہ جہاد کے ڈر سے یا تعاون کی بیماری کے ڈر سے یا موت کے خوف سے یہ جو بھاگ رہے ہیں تو اللہ نے کہا فقال لهم اللہ موتو، تم لوگ مر جاؤ. ثم احیاہم، جب ان کے نبی حزقیل علیہ السلام نے دعا کی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ تو ان کو دوبارہ زندہ کر دے، تو اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کر دیا. پھر اللہ نے کہا ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ رب العالمین لوگوں کے اوپر بڑا فضل کرنے والا ہے. اور یہ حقیقت ہے بھی کہ ہماری جانوں کے اوپر، ہماری زندگی کے اوپر، ہمارے تمام معاملات میں اللہ کا فضل ہے. اور اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو ہماری کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہ ہوتی. آج جو کچھ بھی ہم ہیں یقیناً اللہ رب العالمین کا فضل ہے.
हम जिस हाल में हैं, कोई हमारा मुसलमान भाई गुर्बत की हालत में है, कोई हमारा मुसलमान भाई अमीरी की हालत में है, कोई हमारा मुसलमान भाई किसी बीमारी की हालत में है, जिस हालत में है, याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल से वह है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आम तौर पर गुर्बत या गरीबी या किसी मसाइल में फंस कर हम मुनकर हो जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन से जब मुखातब होते हैं तो बड़े शिकवा अंदाज में होते हैं, शिकायती अंदाज में, कि अल्लाह तो क्या कर रहा है, ऐसी बीमारी है ठीक नहीं हो पा रही, इतने सालों से है, या गुर्बत है या फकीरी है। मेरे भाइयों ये जानना हमें चाहिए, हमें आपको, कि अगर जिस्म से जान निकल जाए तो हमारे जिस्म की कोई अहमियत नहीं है। हम फिर अब जिंदा भी नहीं मान जाते, मुर्दा मान जाते हैं। आप देखते होंगे कि किसी का इंतकाल हो जाता है तो आदमी कहता है लाश कब आई। अब उसके नाम से नहीं कहा जाता कि जो आदमी इंतकाल किया, मतलब कोई आदमी इंतकाल किया उसका नाम अम्र है, अब वो इंतकाल कर चुका, खबर है कि फला आदमी अम्र जो है वो इंतकाल कर दिया, तो हम ये नहीं कहते कि अम्र अब घर कब आएगा, हम ये कहते हैं कि डेड बॉडी कब आएगी, लाश कब आएगी। तो ये बहुत बड़ी गनीमत है कि अल्लाह ने गरीबी दिया है तो क्या दिया, जिंदगी तो दिया है, जिंदा तो है, जिसमें हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जिंदगी पलट सकती है, हमारे हालात बदल सकते हैं, हमारे जो अभी सिचुएशन कंडीशन है अल्लाह उसको बेहतर कर सकता है। ये तो उम्मीद कब हो सकती है, जब हम जिंदा रहेंगे। तो अल्लाह ने अगर जिस्म में रूह और जान दी तो ये भी अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अब रहा सवाल कि अल्लाह अमीरी गरीबी फकीरी मोहताजगी जो दे रहा है, अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है, आजमा रहा है। अल्लाह ताला अमीरी को भी आजमाता है, अल्लाह गरीब को भी आजमाता है। अल्लाह ने कहा इन्न अल्लाह लज़ू फज़लिन अलन नास, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन लोगों का बड़ा फजल वाला है। ये याद रखना चाहिए हमें और आपको कि हम जिस भी हालत में हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे हालात से बाखबर है। अल्लाह को पता है कि किसके हालात को कब दुरुस्त करना है, अल्लाह को पता है कि इसको क्या नवाजना है, किस चीज से नवाजना है, ये हमारा रब बेहतर जानता है। हमारे जो इख्तियार में है वो है कि हम नेकी करते जाए, जो हमारे इख्तियार में अल्लाह ने दिया है, जो अल्लाह चाहता है हमसे, जो मुतालबा है हमारा हमसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का, कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीका रास्ता बतलाया है और जो नबी हमारे दरमियान भेजा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम ऐन उसी के मुताबिक अमल करते जाए। अब अल्लाह बेहतर है हमारे हालात को दुरुस्त करने के लिए। फिर अल्लाह ने एक ये भी बात बयान फरमा दी जो बहुत अच्छी बात, यानी पूरी इस आयत का एक निचोड़ अल्लाह ने बयान कर दिया, वलाकिन अक्सर नास ला यशकुरून, लेकिन अक्सरियत जो लोगों की अल्लाह की शुक्रगुजारी नहीं करती। बात समझ आ रही? शुक्रगुजारी के ताल्लुक से इससे पहले बात दर्स में गुजर चुकी है, अगर आप लोगों को याद होगा तो मैंने बताया था कि शुक्रगुजारी मतलब हम क्या समझते हैं। जैसे अल्लाह ताला ने किसी को कोई चीज दे दिया तो हम कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा और आपका ये मेंटेलिटी है कि हमने शुक्र कर दिया, नहीं, शुक्र नहीं हुआ। हमने तो जुबान से शुक्र अदा किया, बदन से कहाँ किया, नेमत से कहाँ किया। मतलब अल्लाह ने किसी के पास दौलत दे दी तो हमने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो जुबान से हमने कहा ना। अब उस दौलत को अल्लाह के रास्ते में खर्च करिए, शुक्रगुजारी। अब उस दौलत को अल्लाह के लिए खर्च करें, शुक्रगुजारी है। अब उस दौलत का सही इस्तेमाल करें, नाजायज जगहों पर खर्च ना करें, ये शुक्रगुजारी है। अपने बदन से अल्लाह के लिए इबादत करें, अल्लाह के सामने सजदा रेज हो, ये शुक्रगुजारी है। तो शुक्र सिर्फ जो है ये जुबान से कहने का नाम नहीं, जो हमारा आप समझते हैं कि अल्लाह ने कोई चीज दिया और हमने 1 बार 10 बार 50 बार 100 बार हमने ये कह दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये शुक्रगुजारी काफी नहीं है। बात समझ रही है? शुक्र तो किया लेकिन ये काफी नहीं है। किफायत कब कर जाएगी? किफायत करने के लिए है कि हम अपने आज़ा व जवारे से भी अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, ये होती है असली शुक्रगुजारी। इसीलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जानते हैं किस तरह तहज्जुद पढ़ते थे ना, इतना लंबा क्याम करते थे कि आपके पाँव फूल जाते थे। हाथी के पाँव देखते हैं ना कितना मोटा होता है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरीके से पाँव फूल जाते थे। फूलने की वजह क्या थी? लंबा लंबा क्याम। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा वो कहती हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मासूम अनिल खता है, यानी आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है, आप अल्लाह के पैगंबर हैं, आप मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके अगले पिछले गुनाह माफ है, तो आपको इतनी ज्यादा नमाज पढ़ने की क्या जरूरत है? आप तो 5 वक्त की नमाज पढ़ते भी हैं, उम्रा भी करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, मिस्किनों की मोहताजों के आप फिक्र करते हैं, आप रिश्ते नाते निभाते हैं, तो आपको इतनी ज्यादा इबादत करने की क्या जरूरत है कि इतने लंबे लंबे क्याम करने की वजह से आपके पाँव खुल जाते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया था? आप उसने कहा था कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? ये जुमला अल्लाह के नबी ने कहा था। अल्लाह के नबी ने कहा था कि हाँ ये तो बात सही है कि मैं ये तो करता ही हूँ, चलो थोड़ा सा पढ़ लो तो क्या, नहीं, आपने ये नहीं कहा। आपने शुक्र का लफ्ज इस्तेमाल किया कि क्या मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। तो एक नबी जिसके आगे पीछे कोई गुनाह नहीं, एक नबी जो मासूम अनिल खता है, एक नबी जो हमारे लिए उसवा और नमूना बना के भेजे गए,
उनकी इबादत का आलम देखे जिनके ऊपर कोई गुनाह नहीं, तो हमारी इबादत का आलम कैसा जो बहुत सारे गुनाहों में हम डूबे। ये सोचने वाली बातें हैं। तो शुक्रगुजारी का माना ये होता है, अल्लाह ने कहा कि वलाकिन्ना अक्सर नासी ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो होते हैं वो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते। तो शुक्र का माना ये होता है कि अल्लाह जो कुछ दे उसमें हम बदन से, आजा व जवारे से, हर एतबार से अल्लाह का शुक्र अदा करें। लेकिन हमारे क्या होता है, कोई चीज अल्लाह ने हमको दे दी, अल्हम्दुलिल्लाह बोलकर काम खत्म कर लेते हैं, यानी शॉर्टकट हम अपनाना चाहते हैं कि शॉर्ट में सारा काम निपट जाए। नहीं, अल्लाह कोई चीज दे रहा है तो उस नेमत की शुक्रगुजारी करने का तरीका यही है कि अल्लाह ने अगर दौलत दिया तो दौलत को अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए खर्च करें। अल्लाह ने सेहत दिया तो अपनी जवानी को और अपने बदन को, अपने जिस्मों को अल्लाह के लिए इबादत में, नमाज में, रोजा में, इन चीजों में खर्च करें। यही सब है शुक्रगुजार। तो हम तमाम लोगों को शुक्रगुजार बंदा बनने की जरूरत है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 244 के अंदर जिहाद फी सबीलिल्लाह के मुतालिक बयान किया। अल्लाह ने कहा वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, और अल्लाह के रास्ते में क़िताल करो, जंग करो, जिहाद करो। क्या जो जगह करना चाहिए, और अल्लाह के रास्ते में ये है कि क़िताल करो, वालमू, और जान लो कि अन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन सुनने वाला, जानने वाला है। देखिए यहाँ पे इस आयत में अल्लाह ने छोटी सी आयत में 3 चीजों का तज़किरा किया। ये तीनों चीजें हम मुसलमानों की जिंदगी से जुड़ी हुई है और एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन से जुड़ी हुई है। 3 में से 2 हम इंसानों से और एक चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन से। पहले अल्लाह ने क्या कहा, वक़ातिलू फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। ठीक है, जिहाद का कंसेप्ट भी हमारे यहाँ बहुत मतलब अजीब और गरीब और मिक्स करके और बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है कि भी जिहाद है। जिहाद का माना ये होता है कि अल्लाह के रास्ते में अल्लाह के लिए जिहाद करना। हम अपनी जात के लिए किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, कहते हैं कि अल्लाह के लिए हमने किया है। मामला दीन का है ही नहीं, वो मामला इस्लाम का है ही नहीं, मामला अल्लाह रब्बुल आलमीन का है ही नहीं, और हमने कह दिया कि नहीं, हमने अपनी जात के लिए, अल्लाह के लिए हमने ये कर दिया। जिहाद का अगर माना देखा जाए, लफ्जी तर्जुमा अगर किया जाए जिहाद का, अगर लफ्जी तर्जुमा किया जाए तो उसके माना होता है कोशिश करना। जिहाद का यजमा होता है कोशिश करना, अपने आप को किसी चीज में लगा दे, कोशिश करना। कोशिश मतलब नेकी की तरफ कोशिश करना, अल्लाह को राजी करने की कोशिश करना, उसको जिहाद कहते हैं। क्योंकि शुरू इस्लाम में जिहाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो फर्ज किया, आप उसकी अगर तारीख पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो कभी भी मुसलमानों ने जबरदस्ती दीन को कबूल करवाने के लिए किसी से जंग नहीं लड़ी। जिहाद जब भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है काफिरों से, तो सेल्फ डिफेंस में किया है, अपने आप को, अपनी जानों को, अपनी इज्जत को बचाने के लिए किया। जैसे हम और आप हैं, कहीं जा रहे रास्ते में, सफर में हैं, और कोई आदमी आप पर जान लेने की कोशिश करे, तो क्या हम अपनी जान बचा नहीं सकते? ये हमारा हक है कि नहीं? आता हम अपनी जान बचाएंगे, सेल्फ डिफेंस करेंगे हम अपना, ताकि हम बच सकें। नहीं जान बचाएंगे अपनी तो हम तुमको मार देगा हमको। बिल्कुल वही तरीका था कि सहाबा के ऊपर जिस कदर जुल्म ज्यादती हुई, जैसे उनके ऊपर शुरू में तो इस कदर आप सहाबा की जमात के साथ नारवा सलूक किया गया, फिर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह ने हुक्म दिया कि आप मक्का छोड़ के मदीना चले जाए, क्योंकि ये जगह साजगार नहीं है फिलहाल उस वक्त के लिए। वहां चले गए, वहां जाने के बाद भी इन लोगों ने आपका पीछा नहीं छोड़ा और आपको तंग करना शुरू किया, आपके साथियों के साथ ये बुरा सलूक करते रहे, और इस तरीके से खाने पीने की अशिया का रोक देना। ये सारी एक तारीख है जो सीरत नबी में पढ़ सकते हैं। तब जाकर उनकी बार बार परेशानी करने की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिहाद का हुक्म दिया कि अब आप अपने आप को बचाने के लिए लड़े इन लोगों से। तो जिहाद कभी भी किया जाता है तो करने के लिए वो क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो शराइत और कंडीशन होने चाहिए कि जिहाद किस वजह से किया जा रहा है। अभी हम जहाँ जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ जिहाद की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ना हमारे अजान पर पाबंदी है, ना हमारे नमाज पर पाबंदी है, ना हमारे कुरान पर पाबंदी है। हम आसानी से हर काम कर रहे हैं, ईद भी मना रहे हैं, बकरीद भी मना रहे हैं, रोजा भी रख रहे हैं, ज़कात भी कर रहे हैं, हज को भी जा रहे हैं, आ भी जा रहे हैं हज से। अब यहाँ पे कोई कह दे कि नहीं जिहाद करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी जाती लड़ाई को जिहाद का नाम दे रहा है, वो अपनी जाती लड़ाई को जिहाद का नाम दे रहा है, जो कि जिहाद नहीं है। इसलिए अल्लाह ने एक लफ्ज यहाँ इस्तेमाल किया, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में लड़ो। अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह के रास्ते में लड़ना है। तो अल्लाह के रसूल ने जिहाद किस लिए किया? मक्का में अजान देने की इजाजत नहीं दी गई, मक्का में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, मक्का के अंदर हज उम्रा करने से रोक दिया गया। बैत रिजवान का वाकया पड़े होंगे, और सुलह हुदैबिया का मामला जो कि इस तरीके से एग्रीमेंट हुआ, ये सारी चीजें गवाह हैं, शाहिद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त जिहाद किया सेल्फ डिफेंस में।
वरना कभी अल्लाह के रसूल ने नहीं कहा। अल्लाह के रसूल मदनी जिंदगी के अंदर, उसी मदीना के अंदर यहूदी रहते थे, वही यहूदी रहते थे। उसी यहूदी औरत ने आपके खाने में जहर मिला दिया, क्या आपने कहा कि उस यहूदी औरत को काट दो, मार दो, पकड़ लो? कभी भी आपने अपनी जात के लिए नहीं लड़ा। अल्लाह के रसूल ने जब भी लड़ाई की काफिरों से तो इस्लाम के लिए। तो जिहाद का ये फॉर्मूला याद रखें कि जिहाद अल्लाह के रास्ते में किया जाता है, अल्लाह के लिए किया जाता है, ना कि हम अपना कोई सेंटीमेंट ले ले दिमाग में और उसको देने के पूरा करने के लिए हम जिहाद कर लेंगे। एक चीज ये जो हम हमसे और आपसे जुड़ी है कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें जब जिहाद की नौबत आए तो। दूसरी चीज क्या है? वालमू, और जान लो, और जान लो। क्या जानना है? अन्नल्लाह समीउन अलीम, कि बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला और जानने वाला है। देखिए यहाँ पे एक लफ्ज वालमू, जान लो, ये इल्म की तरगीब दे रहा है, तालीम की। ये इस्लाम हमें सिखला रहा है, कुरान सिखला रहा है कि हम में से हर कोई इल्म हासिल करे। जान लो का माने क्या होगा? कौन जान सकते हैं? जानकारी होगी तब ना जानेंगे। जानकारी कहाँ से मिलेगी? कहीं ना कहीं सीखना होगा। सीखने को तो तालीम हासिल करना कहते हैं, सीखने ही को तो कहते तालीम हासिल करना। एक बच्चा पैदा होता है, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाते, मदरसा जाते, सीख रहे हैं। कोई कुरान सीख रहा है, कोई उर्दू सीख रहा है, कोई स्कूल में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, सीख रहा है। तो अल्लाह ने कहा वालम, और जान लो। तो कोई तो ऑटोमेटिक जान नहीं लेगा। कोई कैसे जान लेगा? वो किसी से जानकारी हासिल करेगा तब उसको जानकारी मिलेगी। अभी जैसे आप लोग कुरान का तर्जुमा सुन रहे हैं, तो आपको तर्जुमा कहाँ से मिल रहा है? हमसे मिल रहा है, तो हम आपको जानकारी दे रहे हैं। हमको कहाँ से मिला? हमने भी किसी से सीखा है। इसी सीखने को कहा जाता है एजुकेशन, तालीम हासिल करना। तो ये भी हम लोगों से जुड़ी हुई है कि हर मुसलमान का बच्चा हो या बच्ची हो, वो इल्म हासिल करे। इल्म बहुत बड़ी और बहुत खूबसूरत शय है जो किसी इंसान को असल में इंसान बनाती है, जो हमें हक और बातिल की फर्क और समझ बताती है, जो हमें सही और गलत की फर्क को बताती है। यह इल्म है, तालीम है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को इल्म सिखाएं। अब तीसरी चीज है अन्नल्लाह समीउन अलीम, ये अल्लाह से जुड़ी है। ये जानना है कि अल्लाह ताला सुनने वाला है और जानने वाली अल्लाह की सिफात है। ये अल्लाह की सिफात है, इसलिए कोई लोग नाम रखते हैं, अब्दुल अलीम नाम रखते हैं। अलीम का बंदा यानी जानने वाले का बंदा। अब्दुल समी लोग भी नाम रखते हैं। समी का बंदा, समी कौन है? अल्लाह रब्बुल आलमीन है, जो सुनने वाला है। उसके बाद आयत नंबर 245, 245, अल्लाह ने कहा मंजल लजी युकरिजुल्लाह कर्जन हसनन, क्या ही खूब है कि कोई अल्लाह को कर्ज हसना दे। क्या ही खूब है, क्या बेहतर है, या कौन है जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे। आप सोचिए कि अल्लाह को कोई क्या कर्ज दे सकता है? हम तो खुद अल्लाह के एक एक सांस के मोहताज हैं। अल्लाह जब चाहे हमारे सांस को हमसे छीन ले, अल्लाह जब चाहे तो जिंदा से मुर्दा कर दे। सारे कंट्रोल जो अल्लाह के हाथ में है। हम तो सिर्फ नाच रहे हैं अल्लाह के इशारे पर, हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है कुछ इख्तियार में आगा अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस की पल की खबर नहीं, हमें कुछ नहीं पता हम कब तक जिंदा रहेंगे, हमारी मौत कब वाक़ई हो जाएगी। और अल्लाह रब्बुल आलमीन यहाँ पे कह रहा है कि मंज़ल लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है? या क्या ही खूब है कि कोई अल्लाह को कर्ज हसना दे। कर्ज हसना का माना ये हुआ कि अल्लाह हमसे नेकी चाहता है, नेकी चाहता है। एक नुक्ता यहाँ पे याद रखें कि कर्ज का डिफिनेशन क्या है। कर्ज किसे कहते हैं? कर्ज किसे कहते, उसको कहते हैं कि कोई आदमी किसी दूसरे भाई से कुछ रुपया ले ले, कोई सामान कुछ मांग ले कर्ज की सूरत में। तो कर्ज जब हम किसी से लेते हैं तो क्या उसमें लौटाने का मजाज है कि नहीं? लौटाने का अगर मजाज नहीं तो कर्ज नहीं होगा, वो मदद हो जाएगा। कोई किसी से कुछ मांगा, उसे मदद कर दी, तो ये वो हो गया, लौटाने का मजाज नहीं हुआ। अगर लौटाने का मजाज है यानी हमको वापस रिटर्न करना है तो कर्ज हो गया। कर्ज उसी को कहते हैं कि हमारी जरूरत पड़ी, हमने किसी से ले लिया, भाई एग्रीमेंट हो गया कि महीने बाद बात देंगे, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद या 2-3 बाद, जो भी, उसको लौटाना है। अल्लाह ने कर्ज हसना कहकर हमारे और आपके ऊपर एहसान कर दिया। ये बहुत बड़ा अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने कहा कि तुम नेकी मुझे दो, वो कर्ज की तरह दो, मैं तुम्हें नेकी लौटा दूंगा अजर की सूरत में, जन्नत की सूरत में। यानी कर्ज वो है कि लेने के बाद उसको लौटाना है, लेने के बाद उसको लौटाना है। और किताब और सुन्नत के अंदर मेरे भाइयों कर्ज की इतनी बड़ी अहमियत है कि आप सोच ले एक मुजाहिद जो अल्लाह के रास्ते में है शहीद हो जाए, शहीद हो गया तो शहीद कहते हैं ना हम, अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह को माफ कर देगा। लेकिन अगर उसके ऊपर जिम्मा कर्ज है तो अल्लाह उसके मामले को अटका देगा, पेंडिंग में डाल देगा, आगे नहीं बढ़ाएगा। नहीं, अभी आप जन्नत नहीं जा सकते। क्यों? आपके ऊपर कर्ज है, आपके ऊपर कर्ज है। जब तक जिसने आपको कर्ज दिया है वो आपको दुनिया के अंदर माफ नहीं कर दे, या हश्र के मैदान में मैं उसे बुलाऊं वहां माफ कर दे, जब तक माफी नहीं होगी या अदायगी नहीं होगी, मामला आपका बढ़ नहीं सकता। इतना खतरनाक चीज है कर्ज।
इसीलिए कर्ज लेना गुनाह नहीं है, गलत नहीं है। जब कर्ज ले तो हमें अदायगी का भी साहस होना चाहिए, वरना जानते हैं मामला क्या है, यहाँ तो बच जाएंगे, चलो दिए दिए नहीं दिए, लेकिन अल्लाह वहां मामला फंसा देगा, मामला फंसा देगा। तो इस मामले में एक बात याद रखें कि जब भी किसी से लेन देन करें तो लिखा पढ़ी करें। आप लिखें किस तारीख को किस शख्स से कितना रुपया ले रहे हैं, कितने दिनों के करार पर। जिस करार पे ले रहे हैं वो दिन आ गया लेकिन आपके पास इंतजाम नहीं हो पाया, आप जाकर फिर मिले, फोन से नहीं। होता क्या है कि किसी को कर्ज की जरूरत पड़ती है तो सामने जाकर मिलकर ले लेता है, और जब लौटाने की नौबत आती है और वक्त आ चुका लेकिन पैसा का इंतजाम नहीं, तो हम फोन या मैसेज से काम चला लेते हैं। भाई ऐसे मामला नहीं, बिल्कुल बेबुनियाद गलत चीज है। आप बिल्कुल उसके पास जाइए, और कहीं जिस तरीके से आप लेने गए थे कि ऐसा है कि वक्त तो आ चुका लेकिन इंतजाम नहीं हो पाया, मैं मोहलत चाहता हूँ, और उसमें एक लंबा कुर्सी से कुरान बंदा ने कहा कि अगर सामने वाला माफ कर दे तो उससे क्या कहेंगे, माफ कर दे। अगर अपने भाई को चलो आपसे नहीं लेना है तो अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़ा अजर अपने पास रखे हुआ है। अल्लाह ने कहा मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन कर्ज हसना दे, यानी नेकी करे, भलाई करे, अच्छाई करे, अल्लाह के रसूल की सुन्नत और सीरत के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे, नेक अमाल करे, तो अल्लाह कह रहा है फयुज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, तो अल्लाह ताला उसे बढ़ा चढ़ा कर देगा। देखिए क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की शान है, कितना अल्लाह तबारक व तआला रहीम और करीम है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि अगर किसी को कोई अगर अल्लाह ताला को कर्ज हसना दे, आगे आ जाओ, आगे देखो, मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह कर्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को कर्ज हसना दे, फयुज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे बढ़ा चढ़ा कर देगा। यहाँ पे देखो दो चीज हम याद रखें जो दोनों बिल्कुल आपस में मेल जोल रखा है। दुनियावी एतबार से कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा अहल्लल्लाहु बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ने खरीद और फरोख्त बैअ व शराब को हलाल किया है और सूद को हराम किया है। सूद मुसलमानों के ऊपर हराम है, ये अल्लाह का कानून है, और इसकी बड़ी समझे कि किताब और सुन्नत के अंदर कुरान और हदीस में इसकी बड़ी वईद बयान की गई कि सूद के मामला में जरा बराबर भी बोल रहा है। तो अल्लाह क्या कहता है, सूद असल में है क्या, असल रकम से बढ़ जाना, असल रकम से बढ़ गया सूद हो गया, असल रकम पे तो सूद नहीं हुआ, बढ़ जाना सूद हुआ। तो एक चीज को अल्लाह ने हराम करार दिया जिस पर हमारा और आपका रुझान ज्यादा है, उस पर ज्यादा हम फोकस करते हैं कि ये चीजें हमारे लिए फायदेमंद है, और उसी के अगेंस्ट अल्लाह ने यहाँ बयान किया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसना दे। कर्ज हसना मतलब अल्लाह को कोई कर्ज क्या देगा, कर्ज हसना से मुराद नेकी, हम नेकी करें, भलाई करें, अच्छाई करें, खूब अल्लाह की इबादत करें, रमजान के रोजे रखे, सदका खैरात करें, तो अल्लाह इसको कर्ज कह रहा है, और अल्लाह ने कर्ज कहकर हमारी शान बढ़ा दी। कर्ज लौटाने वाला चीज को कर्ज कहा जाता है, तो अल्लाह आपको लौटा के क्या देगा, अल्लाह फयुज़ाइफ़हु लहु अज़आफ़न कसीरा, अल्लाह आपको बढ़ा चढ़ा के देगा। तो इस पर हमारा कोई फोकस नहीं, जो चीजें हराम है दुनिया में उस पर ज्यादा हमारा फोकस है क्योंकि बढ़ा चढ़ा के मिलता है, अल्लाह उसको नापसंद करता है। और जो चीजें अल्लाह पसंद कर, जो मांग रहा है कि मुझे कर्ज दो, नेकी करो, नमाजें पढ़ो, अच्छाई करो, भलाई करो, रिश्ते नातों को जोड़ो, दोस्तों अहबाब से मोहब्बत करो, घर वालों की फिक्र करो, तो अल्लाह कह रहा है कि हम उसको बढ़ा चढ़ा कर देंगे, ये चीजें हमारे लिए हलाल है। वल्लाहु यक़बिज़ु व यबसितु, अल्लाह ही है जो कुशादा करने वाला है और जो समेटने वाला है, ये अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह चाहे तो किसी की रोजी को बढ़ा दे, अल्लाह चाहे तो किसी की रोजी को सिकोड़ दे, पूरा खत्म कर दे या कम कर दे। आगे अल्लाह बयान कर रहा है व इलैहि तुरजाऊन, और लौट कर तो अल्लाह के पास जाना। ये पूरी आयत का निचोड़ है। हम में से कोई इंसान अपनी जिंदगी में दुनिया में किधर भी भाग ले, इधर चल जाए उधर चल जाए, पूरी जिंदगी इधर उधर करे, लेकिन मरने के बाद जाना है अल्लाह के पास। ये बात अगर हम समझ गए तो हमसे गुनाह नहीं होगा। ये बात अगर हम समझ गए, एक क्रिमिनल ये समझ ले कि उसको हर हाल में पुलिस से पकड़ा जाना है तो क्राइम नहीं करेगा, क्योंकि जानता है पकड़ना है, पकड़ाना ही पकड़ाना है, कोई बचने की जगह नहीं है। चाहे आज पकड़ जाए या कल पकड़े जाए तो वो क्राइम से डरेगा, क्योंकि उसको पकड़ में आना है। मुसलमान इस बात को जान ले कि लौटना अल्लाह की तरफ, मर के हम कहाँ जाएंगे, कब्र में कहाँ जाते हैं, कब्र में तो हमारे जिस्म खत्म हो जाते हैं लेकिन रूह तो चल गई अल्लाह के पास। लौटना अल्लाह के पास है, और अल्लाह के यहाँ जो हिसाब किताब का मामला है वह रिश्वत वगैरह नहीं चलेगी कि ले दे के फरिश्तों को थोड़ा आगे बढ़ जाए कि चलिए तो कुछ मामला गड़बड़ है तो ठीक कर दिया जाए। वहाँ इंसाफ होगा, अल्लाह का जो इंसाफ होगा दुनिया के इंसाफ से बहुत बेहतर। वहाँ कभी किसी पर कोई नाइंसाफी नहीं होगी, किसी के साथ जुल्म नहीं होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी।
वइलैहि तुरजाऊन, अल्लाह कह रहा है कि लौटना तुम लोगों को मेरी तरफ है। तो अल्लाह की तरफ जब लौट के जाना है तो हम उस काम को क्यों करें जिसको अल्लाह नापसंद करता है, जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, हम कभी नहीं करेंगे। वो लौटना अल्लाह की तरफ है। और अगर उस काम को कर रहे हैं ये बात जानते हुए भी कि अल्लाह की तरफ लौटना है, तो इसका मतलब ये है कि हम जानबूझ कर खुली गुनाह कर रहे हैं, खुला गुनाह का डर नहीं अल्लाह से, हमको खौफ नहीं अल्लाह से, हम जान रहे हैं कि लौट के अल्लाह के पास जाना अल्लाह इस चीज को नापसंद करता है, तो हम जानबूझ कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमारे दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, डर नहीं है, हम समझ रहे कि हम बहुत चला गए, कुछ नहीं हो सकता। तो अल्लाह ने कहा इलैहि तुरजाऊन, और अल्लाह की तरफ लौट के जाना है। उसके बाद आयत नंबर 246 एक बड़ी आयत है जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दोबारा बनी इस्राएल का वाकया पेश किया। अब मैंने शुरू में कहा था कि आप कुरान मजीद जैसे जैसे पढ़ते चले जाओगे आपको एक वाकया बार बार आएगा, वो है मूसा अलैहिस्सलाम उनकी कौम का। सबसे ज्यादा जिक्र उसी कौम का जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। अब सवाल ये कि क्यों किया, जबकि इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया रहमतुल लिल आलमीन तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, तो जिक्र तो उसूली तौर पे उनका ज्यादा जिक्र होना चाहिए हमारे नबी का, लेकिन हमारे नबी के नाम सिर्फ एक सूरह मोहम्मद है और कुछ नहीं है। बहुत कम बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन ज्यादातर बातें मूसा अलैहिस्सलाम की हैं। आपको मालूम है इसमें हिकमत क्या है? इसमें हिकमत यह है कि बनी इसराइल ने जो जो गलतियां और खामियां की है और जो कोताहियां की हैं, अल्लाह ने हमारी और आपकी फलाह बहबूदी के लिए और निजात के लिए बार बार उनके वाकये को जिक्र किया, बार बार उनके वाकये को जिक्र किया, ताकि मान लीजिए आज हमने सुन लिया बनी इसराइल के बारे में, कल तक डरे, परसों डरे, एक हफ्ता डरे, फिर डर निकल गया, फिर आगे बढ़े तो फिर वो आयत आ जाएंगे, फिर वो डर पैदा हो जाए, नहीं तो हम तो उसको छोड़ चुके थे, जबकि फिर उन्होंने ऐसा किया। यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन दोबारा बनी इसराइल का वाकया जिक्र करते हुए बयान फरमा रहा है, अलम तरा इलल मलई मिन बनी इसराइल मिन बाद मूसा, क्या तुमने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल को नहीं देखा? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल जमात को नहीं देखा? अब बनी इसराइल के बारे में मैंने बताया था कि इसराइल के माना होता है अब्दुल्ला। इसराइल का माना क्या होता है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला का माना उर्दू में क्या होता है? अल्लाह का बंदा। अब्दुल्ला का माना होता है उर्दू में अल्लाह का बंदा। इसराइल का माना होता है अब्दुल्ला, यानी इसराइल, इसराइली अपने आप को इसराइल इसलिए कहते हैं, जो कंट्री इसराइल है, कि हम ही अल्लाह के बंदे हैं, मुसलमानों का कुछ नहीं है। ये उसी गलतफहमी में जी रहे हैं। और पीछे वो आयत भी गुजर चुकी है कि हम तो जन्नत में चंद दिन रहेंगे, जहन्नम में। अगर हम जहन्नम में गए भी, यहूद और नसारा की अकीदा है कि अगर हम जहन्नम में चले गए अपने गुनाह की वजह से, तो 2-4 दिन में निकल जाएंगे। और उनके उलमा कहते हैं, जो पादरी वगैरह, कि बहुत ज्यादा अगर हम जहन्नम में रहेंगे तो 40 दिन रहेंगे, उससे ज्यादा नहीं रहेंगे। ये उनका अकीदा है। इसराइल के माना होता है अल्लाह का बंदा। इसराइल लकब किसका था? ये याकूब अलैहिस्सलाम का लकब था। याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था अब्दुल्ला या इजराइल। बनी मतलब होता है औलाद, जैसे बनी आदम हम लोग हैं, आदम की औलाद है, तो बनी इसराइल का माना होता है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम की कितनी औलाद थी? 12 औलाद थी। याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलाद से यहूद के 12 जमात निकली, यहूदियों के 12 फिरके निकले, जमात निकले। इनसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की 12 औलाद से। तो बनी इसराइल का माना होता है याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। यहाँ पे अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान कर रहा है, क्या तुमने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल जमात को नहीं देखा? असल में बनी इसराइल में बहुत सारे पैगंबर आए, बहुत सारे। बनी इसराइल में सबसे ज्यादा नबी रसूल अगर किसी जमात, किसी कौम में आई तो बनी इसराइल के अंदर आई। अब उस सिलसिला जानते हैं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, एक थे इसहाक अलैहिस्सलाम और एक थे इस्माइल अलैहिस्सलाम। इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे यूसुफ अलैहिस्सलाम। अब एक सिलसिला चल रहा है, उसमें मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, जितने भी नबी आए सब उसी इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल से हो रहे हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल से एक ही नबी आया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आखिरी पैगंबर भी हुए। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी मांगी थी कि मेरी नस्ल से आखिरी नबी पैगंबर हो। तो ये बनी इसराइल में सबसे ज्यादा नबी आए, सबसे ज्यादा नबी बनी इसराइल में आए। उनमें सरे फहरिस्त अगर कोई नबी ज्यादा जिसको हम जानते हैं, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे, जो सबसे बड़े नबी थे बनी इसराइल के। शुएब अलैहिस्सलाम उसी में आए, ये सब उसी बनी इसराइल के अंदर आए। अब अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद के वाक्य बयान कर रहा है। असल में ये आयत इस मुनासिबत से नाज़िल हुई कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद चंद सालों तक बनी इसराइल ठीक रही, चंद सालों तक बनी इसराइल बिल्कुल ठीक रही। जो वो दिन देकर गए थे, तौरात उनके ऊपर नाजिल हुई थी, सब जो है बनी इसराइल जो थे वो उस पर अमल करते रहे। लेकिन चंद दिनों के बाद इन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली, यानी अब वो तौरात पर अमल नहीं करते थे, अल्लाह की इबादत नहीं करते थे। सारी वो जो दावत और तबलीग का काम है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कर गए थे, उनको उन्होंने छोड़ दिया और फिर वो बुतों की इबादत में चले गए, सुन्नत को छोड़कर बिदअत के पीछे पड़ गए, गुनाहों के पीछे चले गए। उनके दरमियान नबी भी आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद
नबी भी आए जो उनको समझाने लगे कि देखिए आप लोग ये काम ना करें, अल्लाह ताला इस चीज को मना करता है, आप वो काम करें जिससे अल्लाह खुश होता है। लेकिन इन्होंने अपनी उस नबी की भी बात नहीं मानी। तो अल्लाह ने क्या किया, अब उस नबी के जाने के बाद भी एक लंबे समय और अरसे तक नबूवत और रिसालत का सिलसिला खत्म कर दिया, भेजा ही नहीं नबी किसी को। अब ये परेशान हो गए। अब ऐसा हुआ कि इनकी जानों पे खतरा पैदा हो गया, इनके जमीनों को इनसे निकाल दिया गया जगहों से, और इनके बच्चों को और इनके लोगों को कैदी बना लिया गया। तो इन्होंने अल्लाह से दुआ किया कि अल्लाह अब हम फिर राह रास्त पर आ जाएंगे, कोई नबी भेज दें। तो शमूएल अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए। ठीक है, ये नाम याद रखिए, शमूएल अलैहिस्सलाम नबी बनाकर भेजे गए। उन्हीं का तज़किरा यहाँ पर है, शमूएल की कौम बनी इसराइल। क्या तुमने हजरत मूसा के बाद वाली बनी इसराइल जमात को नहीं देखा, मलिकन, जब उन्होंने अपने नबी से कहा कि हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। जब शमूएल अलैहिस्सलाम आ गए तो अब ये सब परेशान थे, इनके लोग कैदी बना लिए गए थे, कोई जालिम हुक्मरान अल्लाह ने मुसल्लत कर दिया था जो इनके लोगों को कैदी बना लिया और इस तरीके से इनको इनकी जगहों से निकाल दिया, यानी इनको जिला वतन कर दिया। अब शमूएल अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने कहा कि देखिए पैगंबर, हमारी दुआ से बहुत बहुत अरसे के बाद आप आए नबी बनाकर, आप एक काम कीजिए, हम हमारे अंदर किसी को बादशाह बना दीजिए, बादशाह बना दीजिए। ये उन्होंने मुतालबा किया, क्यों बादशाह बना दीजिए, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम उनके मातहती में, उनके अंडर में, उनकी लीडरशिप में हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। क्या करेंगे, जिहाद करेंगे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी अल्लाह ने वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करेंगे। उन्होंने कहा, शमूएल अलैहिस्सलाम ने काला, उन्होंने कहा, उनके नबी ने, हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल कितालु अल्ला तुकातिलू, मुमकिन है कि जब तुम्हारे ऊपर जंग और जिहाद फर्ज कर दिया जाए तुम लड़ोगे नहीं। ये नबी ने कहा। देखिए बनी इसराइल की कितनी मतलब हरकत ऐसे थे कि नबी जान जाते थे कि ये अपने बात से मुकरने वाली कौम हो गई है, अब उनकी कोई पहचान नहीं रह गई थी। उन्होंने कहा कि मुमकिन है कि जब तुम्हारे ऊपर इन कुतिबा अलैकुमुल किताल, जब तुम्हारे ऊपर किताल फर्ज कर दिया जाएगा, जिहाद फर्ज कर दिया जाएगा, अल्लाह तो कातिलू, तुम लड़ोगे नहीं। उन्होंने कहा, अब उनकी कौम ने कहा, बनी इसराइल काल, उन्होंने कहा, वमा लना अल्ला नुकातिला फी सबीलिल्लाह, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसे मुमकिन है कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद नहीं करेंगे, जबकि वक़द उखरिजना मिन दियारिना, जबकि उन्होंने हमें हमारे शहरों से निकाल दिया, व अबनाअना, हमारे बच्चों से दूर कर दिया। ये कौम ने कहा, बनी इसराइल ने अपने नबी से, शमूएल अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कहते हैं कि जिहाद फर्ज होगा तो हम नहीं लड़ेंगे। आप जान रहे हैं उन लोगों ने हमें हमारे शहरों से, घरों से निकाल दिया, बेघर कर दिया, जिला वतन कर दिया, हमारे बच्चों से दूर कर दिया, कैसे नहीं लड़ेंगे, हम तो लड़वे करेंगे। अब देखें, अब अल्लाह ने कहा, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल किताल, जब उनके ऊपर जिहाद फर्ज कर दिया गया, तवल्लु इल्ला कलीला मिनहुम, उनमें से सिवाय चंद के सब पीछे भाग गए। इसीलिए अल्लाह ताला बार बार बनी इसराइल का वाकया बयान करता है कि हम अपनी इस्लाह करें। हम अहद करते, रमजान आते हैं तो खूब नमाज पढ़ते हैं, अपने आप को पाबंदी मिला देते, जैसे रमजान का फिर वही काम करते हैं। तो कहाँ फर्क रह गया हमारे बनी इसराइल में, कहाँ फर्क रह गया। कोई मामला आता है, दुख मुसीबत आते हैं तो अल्लाह अल्लाह करते हैं, दुख जैसे अल्लाह हटा देते हैं फिर हम भूल जाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन को, इंतजार में रहते हैं कि दुख आएगा तो अल्लाह को पुकारेंगे और खुशी आएगी तो हम अपने मन मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। एक मुसलमान, सच्चा मुसलमान वही है जिसकी अपनी कोई मर्जी नहीं, जिसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं, उसका जीना, उसका मरना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका उठना, सोना, जागना सब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आइन मुताबिक होगा। अल्लाह उसके रसूल के आइन मुताबिक होगा, वही मुसलमान है, उसकी अपनी कोई मर्जी नहीं। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने कहा, बहुत अरसे के बाद जब दुआ मांगी तो अल्लाह ने शमूएल अलैहिस्सलाम को भेज दिया। अब इन्होंने कहा कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दीजिए। इन्होंने कहा कि क्यों, हम अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे उनके अंडर में। फिर उन्होंने शमूएल अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो ऐसी बात है, तुम्हारे हरकत और तुम्हारा रिकॉर्ड बता रहा है तुम लोगों का कि तुम नहीं लड़ोगे। उन्होंने कहा क्यों नहीं लड़ेंगे, उन्होंने हमको घर से निकाल दिया, हमारे बच्चों को कैदी बना लिया, दूर कर दिया, हम जरूर लड़ेंगे। अल्लाह ने कहा, फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल किताल, जब उनके ऊपर जिहाद फर्ज करा दिया, तवल्लु इल्ला कलीला मिनहुम, सिवाय चंद लोगों के, थोड़े लोगों के सब फिर गए, मुकर गए, मतलब नाम नहीं जाएंगे, जान चल जाएगी वहां पे लड़ाई होगी। वल्लाहु अलीमुम बिज़ालिमीन, अल्लाह ताला जालिमों को जानने वाला है। यहाँ पे अल्लाह ने जालिम कहा है, अल्लाह ने बनी इसराइल के उन लोगों को जो जिहाद से मुकर गए, अल्लाह ने उनको जालिम कहा है। कुरान का एक उस्लूब याद रखें कि कहीं कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़ा बेहतरीन अल्फाज का इस्तेमाल किया, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ नहीं है। तो अल्लाह ने कहीं कहीं पर बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है, जो नेकी करते हैं, भलाई करते हैं। कहीं कहीं पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बतौर ज़ज्र व तौबीख, डराने के लिए, धमकाने के लिए और समझाने के लिए जालिम का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जालिम कहने का मतलब क्या हुआ, जालिम कौन होता है,
जो अपने मातहतों को दबाता है, जुल्म करता है, उसको कुचल देता है, उनके हुकूक को छीन लेता है, उनकी जमीन जायदाद को नाहक कब्जा कर लेता है, उसको जालिम कहा जाता है। तो अल्लाह ने कहा उनको जालिम, जो लोगों ने कहा था कि हम लड़ेंगे, आप बादशाह बना दीजिए। इसी तरीके से लुकमान अलैहिस्सलाम ने जो अपने बेटे को नसीहत की, या बुनैया ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ मेरे बेटे अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना, इन्ना शिरक ला जुल्मुन अज़ीम, इन्ना शिरक ला जुल्मुन अज़ीम। यहाँ भी लफ्ज़ जुल्म इस्तेमाल हुआ है कि बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। तो ये लफ्ज की गहराई को समझने की जरूरत है कि अल्लाह कहाँ पे कौन से वर्ड का इस्तेमाल कर रहा है, यानी उसकी गहराई और उसकी वाइद को समझिए कि अल्लाह ने कहा कि जब ये मुकर के सिवाय चंद लोगों के हैं, तो चंद लोग तो ठीक रहे, मोमिन रहे, जो मुकर गए वो जालिम थे। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ालिमीन, बेशक अल्लाह ताला जालिमों को जानने वाला है। एक तीसरा मसला इसमें निकल के आता है जो इन्होंने कहा आगे, जो तीसरा मसला अगली आयत में आ रहा है, आयत नंबर 247 टू 47, जो इस दर्स का आखिरी आयत है। अल्लाह ने कहा, नबी ने कहा, काला लहुम नबीउहुम, और उनके नबी ने उनसे कहा, इन्नल्लाह कद बाअस लकुम तालूत मलिकन, बेशक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारे लिए हजरत तालूत को बादशाह बना के भेजा, हजरत तालूत को बादशाह बना के भेजा। देखिए हमारा एक जो मिजाज और रुझान है आज के जमाने में कि बादशाह ये जायज नहीं है, ये ना समझते हैं कि बादशाह जायज नहीं है। ये समझना होगा कि हम कहाँ से कह रहे हैं, उसका रेफरेंस क्या है, किसने कह दिया। बाद लोग सऊदी अरबिया या जो गल्फ ममालिक है, खलीज ममालिक, उस पर उंगली उठाते हैं कि देखिए बेटा बेटा के बाद बाप, बाप के बाद बेटा, बेटा का उसका, फिर उसका बेटा, इस तरह चलते तो जायज नहीं है। सवाल ये है कि अगर जायज नहीं है तो अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाह क्यों बना दिया? अगर बादशाह खराब चीज है तो नबी बादशाह कैसे बन गया? अगर बादशाह खराब है तो यहाँ अल्लाह ने जो बनी इसराइल ने मुतालबा किया था कि हमारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दीजिए, कि नबी काफी नहीं था। आप गौर करें कुरान के आयत की गहराई को। शमूएल अलैहिस्सलाम तो आ ही गए उनके दरमियान, बहुत अरसा गुजर चुका था, इनकी जमीनों पर कब्जा हो चुका था, इनके बच्चों को कैदी बना लिया गया था, तो अल्लाह ने किनको भेजा? नबी को भेजा ना। तो नबी क्या काफी नहीं थे? क्यों उसके बावजूद नबी के मौजूदगी में हजरत तालूत को अल्लाह ने बादशाह बनाकर भेजा? किसने बादशाह बनाया? बादशाह किसकी तरफ से बनाकर भेजा गया? अल्लाह की तरफ से। अगर बादशाह, अजान के बाद इंशाल्लाह दर्स को शुरू किया जाएगा। बाय। बोर नहीं ना हो रहा है भाई जी? तो लंबा हो गया है नहीं, बोर इतनी ना हो रही है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी जो उस दुआ का जो उन्होंने कहा था शमूएल अलैहिस्सलाम से कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दिया, इस पर रोशनी डालने का मकसद ये है कि कोई सपोर्ट में नहीं आ रहा है कि सऊदी अरब ठीक कर रहा है, उसके सारे आमाल दुरुस्त नहीं। हमारे लिए उसवा सऊदी अरब नहीं है, हमारे लिए उसवा किताब व सुन्नत है।
जो कुरान कहता है हम उसको, हमारा ईमान है वो सही है, इसमें एक लफ्ज गलत नहीं है कुरान में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जिंदगी है, आपका जो तरीका, आपकी सुन्नत, आपका रास्ता, तो सब बेहतर, उससे बेहतर कोई तरीका और रास्ता नहीं है। तो बादशाहत के ऊपर जो लोग कहते हैं कि वहाँ तो गलत होता है, क्यों, वही काबिल आदमी है, उसका बेटा ही काबिल है, बहुत सारी काबिलियत है। तो बादशाह तो कुरान में भी तो है, कुरान में भी तो बादशाहत है। क्या अल्लाह ताला ने सुलेमान सलाम को नबी के साथ बादशाह भी बनाया था, आप जानते हैं, उनका तख्त था सुलेमान सलाम का, पूरा वाकया आप लोग जानते हैं। यहाँ पर भी अल्लाह ने शमील अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हज़रत तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। तो ये बहुत अपने जहन को साफ रखने की जरूरत है कि ये चीजें जो हम कहते हैं कि गलत है, उसका रेफरेंस क्या है, कहाँ से हमने गलत समझा। सबसे बड़ी बात ये, क्या वहाँ के अवाम ने कभी आज तक आंदोलन किया कि हमारी हुकूमत हमारे खिलाफ है, हमारे हुकूक को छीन रही है, हमें कोई चीज नहीं दे रही है? उसके मुकाबले में जमहूरियत हमारे यहाँ परेशानी ज्यादा है, यहाँ परेशानी ज्यादा है। आप देखें कि हम जिस कंट्री में रहते, जमहूरियत में, यहाँ क्या हालात है, कोई हक बोलने को तैयार नहीं, कोई हक का साथ देने को तैयार नहीं। तो कोई भी काम करने से पहले ये भी नहीं कहा जाए जमहूरियत खराब है, इसलिए कि यहाँ हक का कत्ल हो रहा है, नहीं, हर चीज अपनी जगह ठीक है, लेकिन किसी को गलत करने के लिए उसके लिए दलील होनी चाहिए कि हाँ चीज गलत है। अगर अल्लाह ताला को बादशाह नापसंद होती तो अल्लाह कभी भी सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक नबी को बादशाह नहीं बनाता, अल्लाह कभी नहीं बनाता। यहाँ पे हज़रत शमील ने कहा, वक़ाल नबी, उनके नबी ने उनसे कहा कि अल्लाह ताला ने कहा, इन्न अल्लाह कद बाअस लकुम तालूता मलिकन, ठीक है, अल्लाह ने तुम्हारी दुआ कबूल की और तुम्हारे लिए तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर कर दिया। अब देखिए बादशाह तो बन गए, ये क्या मुतालबा करते थे बनी इसराइल कि शमील अलैहिस्सलाम से उन्होंने कहा कि हमारे लिए बादशाह बना दीजिए, हम उनके अंडर में लड़ेंगे, अल्लाह के राह में जिहाद करेंगे। जब बादशाह बनकर आ गए कालू, तो बनी इसराइल ने कहा, अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना, क्या ये हमारे ऊपर बादशाह बनाकर भेजे गए हैं? अब देखिए उनका अंदाज बदल गया, जो चीज मांग रहे थे अल्लाह ने दे दिया। अब कह रहे हैं अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिनहु, हम उनसे ज्यादा बादशाह के हकदार हैं। ये बदमाशी ना हुआ? अल्लाह से, आप ही ने नबी से कहा कि अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से कोई बादशाह मुकर्रर करा दीजिए, या आप हम ही से किसी को बादशाह बना दीजिए। अल्लाह ताला ने यह कहा कि हम बना देते हैं तालूत को। अभी कह रहे क्या वो हमारे ऊपर बादशाह बन के आया है? नहनु अहक्कु बिल मुल्कि मिनहु, हम ज्यादा हकदार है, हम सबसे ज्यादा हकदार, उनसे बेहतर तो हम बादशाह बन सकते हैं। तो जब आप बन सकते हो तो बोले क्यों कि बना दीजिए? बात समझ आ रही है? हम उनसे ज्यादा हकदार हैं। वलम यूत सात मिनल माल, इनके पास तो माल की भी कुछ आदगी नहीं है, माल मतलब दौलत, पैसे की रवानी, माल की भी इनके पास वसअत नहीं है। काला, तो उस नबी ने कहा कि इन्नल्लाह इस्तफाहु अलैकुम, बेशक अल्लाह ताला ने इसी को तुम्हारे ऊपर चुन लिया। उनके पास मालदारी है कि नहीं हमको नहीं मालूम, अल्लाह ने इसको चुन लिया तुम्हारे ऊपर बादशाह के तौर पर। वज़ादहु बसतन फिल इल्म वल जिस्म, और इल्मी एतबार से और जिस्मानी एतबार से तुमसे ज्यादा कुव्वत रखने वाले हैं कौन? हजरत तालूत। वल्लाहु यूती मुल्कहु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है बादशाह देता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहे तो फकीर को बादशाह बना दे, और अल्लाह चाहे तो बादशाह को फकीर बना दे। तो अल्लाह चाहेगा तो होगा। अब तालूत को अल्लाह ने चाहा है, अल्लाह ने बनाया है, तो तुम होते कौन इस पर तंज करने वाले या फकरिया तंजिया अल्फाज इस्तेमाल करने वाले के इससे ज्यादा तो हम हकदार हैं। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन बड़ी वसअत वाला, बड़ी जानकारी वाला है, जानने वाला है। तो उन्होंने हजरत तालूत, क्योंकि उनके यहाँ हजरत तालूत माल के एतबार से कमजोर थे, जब उनको बादशाह बनाया गया था, उन्होंने एक लफ्ज कहा ना, वल्लम यूत सात मिनल माल, उनके पास तो माल की वसअत नहीं है। तो ये कहाँ से आ गया कि बादशाह होगा तो उसके पास माल की फरावानी होगी? ये भी एक बात है कि बादशाह इंसाफ पसंद होना चाहिए, बादशाह वो हो जो इंसाफ कर सके। अगर कोई अमीर गरीब को सता रहा है तो अमीर के लिए वही कानून बनेगा जो कानून गरीब के लिए। अदल व इंसाफ सबसे बड़ी चीज है। तो बनी इसराइल का वाकया अल्लाह इसीलिए बार बार बयान कर रहा है कि बयान करने का मकसद ये है कि ये कौम जिस तरीके से अपने नबी को परेशान करती थी और जिस हिसाब से बदमाशी करती थी, वो चीजें हमारे अंदर ना आ जाए, वो चीजें हमारे अंदर ना आए। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आप जानते हैं कि हमसे पहले अगर अल्लाह के नजदीक कोई कौम सबसे ज्यादा फजीलत वाली थी तो ये बनी इसराइल थी। वो अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन का लफ्ज़ अल्लाह ने कुरान में कहा है कि हमने तुमको तमाम जहान वालों पर फजीलत दे रखी है। और सूरह मायदा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 20 में भी बयान किया है कि हमने तुमको वो चीजें दी जो तुमसे पहले किसी को आलम में नहीं दी। क्या दिया बनी इसराइल को? अल्लाह ने जन्नत से खाना उतरता था जो हम लोगों को नहीं मिला, उम्मत मोहम्मदिया को मिला। अल्लाह के रसूल के जमाने की सहाबी के लिए उतरा, मन व सलवा नहीं उतरा। ये बनी इसराइल को अल्लाह ने दिया। अल्लाह ने कहा कि हमने तुमको वो चीजें दी है जो किसी को नहीं दी दुनिया में हमने। इसी तरीके से
फिरौन की लश्कर से निजात अल्लाह ने दिया जब मूसा अलैहिस्सलाम को, तो समंदर को फाड़ दिया। क्या हमारे लिए ऐसा कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ये कह रहा है बनी इसराइल के मुताबिक, लेकिन उनकी शरंगेजी की वजह से, उनकी परेशानी अपने पैगंबर को पहुंचाने की वजह से अल्लाह ने वो लकब, वो टाइटल मुझे छीन कर हमें और आपको दिया। किनको? उम्मत मोहम्मदिया को। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, हमारे बारे में अल्लाह ने कहा कुरान में कि तुम एक बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई हो। अगर हम भी बनी इसराइल अमल करेंगे तो हदीस नहीं भूलनी चाहिए कि अल्लाह के रसूल ने कहा कि अगर ये कौम भी बनी इसराइल के नक्शे कदम पे चलेगी और नाफरमानी करेगी तो इस कौम को हटाकर हम ऐसी कौम को पैदा करेंगे जो सिर्फ अल्लाह की इताअत करेगी। ये गलतफहमी में ना रहे कि नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया, कुरान अब नहीं उतरेगा, कुरान का सिलसिला खत्म हो गया। हकीकत है, लेकिन अल्लाह जो चाहेगा करेगा, ये खत्म नहीं हुआ है। अल्लाह जो चाहेगा, अगर हम भी अल्लाह को भूल जाएंगे और वो सारे काम करेंगे जिसको अल्लाह के नबी ने मना किया है, तो अल्लाह हमको मिटा देगा यहाँ से और नई कौम पैदा कर देगा जो अल्लाह के लिए बिल्कुल आसान है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आज के दर्स की बात यहाँ तक मुकम्मल हो गई। अगर कोई सवाल हो ऑनलाइन में भी या ऑफलाइन में तो आप पूछ सकते हैं। जैसे कि अभी का डेव फातिया या फिर फातिया, वो सब खाना कैसा है? ये ना सवाल का जवाब बाद में दे देंगे। मेरे दर्स के मुताबिक कोई सवाल है? हाँ, तो क्या कोई पूछे हम देंगे, अब देंगे। अच्छा ठीक है। अल्लाह के घर के लिए जैसे मदरसा बना रहे, मस्जिद मदरसा पूरी बना रहे, ये आयत के मुताबिक है, तो अल्लाह के घर के लिए मदरसा के लिए कुछ भी तो कर्ज ले सकते हैं। अगर हम लिए तो उसका अदायगी नहीं कर पाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? और ये आयत जो है ये दलील फिट होगा, मतलब कि कर्ज के मुताबिक, अल्लाह के घर के मुताबिक ये वाला दलील। सवाल ये है कि जैसे अल्लाह का घर बन रहा है, अल्लाह का घर सिर्फ मस्जिद होता है, मदरसा नहीं होता है। सबसे पहली बात, मस्जिद बनाने के लिए क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं तो हम लोग के जो मामला है कि आपसी ताउन ही से अल्लाह का घर बनता है। कोई मतलब यहाँ के हुक्मरान मुसलमान नहीं कि जो मस्जिद बनाते रहे, तो हम लोग अपने ही ताउन से चंदे से मस्जिद बनाते हैं। तो मान लें कि उस मस्जिद को बनाने के लिए हम किसी से कर्ज लें और उसकी अदायगी ना कर सके, उसकी अदायगी ना कर सकें, तो क्या इस आयत की रोशनी में हमारा भी मामला जो है मौखर हो जाएगा या पेंडिंग में आ जाएगा? यही सवाल है ना आपका। देखिए सबसे पहली बात यह है कि ये तो मस्जिद बनाने तो ईमानियत से जुड़ी हुई है। ये तो हर मुसलमान का ईमान है कि हर बस्ती में मस्जिद हो। कोई चाहता है कि अपने घर से 10 मिनट चल के मस्जिद जाए? कोई नहीं चाहेगा। हर आदमी चाहेगा कि मस्जिद हमारे घर के करीब हो ताकि आसानी से हम चले जाए, नमाज पढ़ ले। हाँ, रहा सवाल कि उसके लिए कर्ज हो जाता है, बनाने में, जमीन खरीदने में, रजिस्ट्री करने में बहुत अखराजात हैं। ऐसी सूरत में अगर कर्ज हो जाए और कोई ना दे सके तो ऐसी सूरत में उसके लिए जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि एक जिम्मेदारी कर्ज लेने वाले की जो जिम्मेदारान कमेटी जिसको कहते हैं, तो किसी भी सूरत में कर्ज को अदा करे। अगर नहीं अदा कर सकती है तो कर्ज जिससे लिए उसके पास जाए, मोहलत मांगे, क्योंकि ये सिलसिला तो ऐसा नहीं कि खानदानी सिलसिला है, हम ही को लेके चल रहा है, 2 साल बाद हम चेंज हो जाएंगे, कोई नए लोग आएंगे, तो अल्लाह अपने घर को कहीं ना कहीं से बनवा देगा। एक चीज। दूसरी चीज, ये सवाल पैदा ही नहीं होना चाहिए। मुसलमान अपने ईमानी जज्बे का सबूत दे, मुसलमान अपने ईमानी जज्बे का सबूत दे, अल्लाह के घर बनाने के लिए बढ़ चढ़ का हिस्सा ले। ये नौबत ही ना आए कि अगर बात आ भी गई नौबत, तो सुनने में कितना खराब लग रहा है कि मुसलमानों ने अल्लाह के घर को नहीं बना पाया। मुसलमान बस्ती है और मुसलमान अल्लाह को घर बनाने में नाकाम है, सुनने में खराब लगता है। फिर भी कर्ज का जो मामला है हर जगह एक ही है, अगर अदायगी नहीं हो पा रही तो मोहलत ले ले। कर्ज जो देता है उसके बारे में कुरान के अंदर है कि मोहलत दे दे, उसको अल्लाह ने हुक्म दिया है मोहलत दे। अगर वो नहीं दे पा रहा है तो माफ कर दे, तो क्या कहें, अल्लाह उसके लिए बहुत बड़ा अजर, क्या अजर अल्लाह ने बताई, अल्लाह ने छुपा दिया। जब अल्लाह को किसी चीज को नहीं बता रहा है, हाइड है, तो सोच लीजिए कितना बड़ा अजर होगा। तो उसने माफ कर दिया, कितना बड़ा अजर होगा। क्यों सर, एक सवाल है जिहाद के ऊपर जो भी बोले थे, जैसे मान के चलिए कि अगर कोई मस्जिद को तोड़ा तो उसके लिए हम लोग बचाने जा सकते, वो जिहाद में आएगा या नहीं? हाँ क्यों नहीं, तो कोशिश जिहाद में होता है, कोशिश करना। हाँ, जिहाद से मना ही होता है। इसलिए अब ये सवाल पूछे कि अभी हाल ही जो अभी देख रहे हैं ज्ञान बापी मस्जिद के बारे में जैसे तोड़ा जा रहा है, तो अब उसके लिए मतलब क्या, मतलब हम लोग सब मुसलमान जिहाद टाइप उतर सकते हैं? वो लड़ाई का जिहाद बोल रहे हैं, नहीं बचाने के लिए उसको। हाँ बिल्कुल कहेंगे हम। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम जहाँ पे रहते हैं उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए। पहले हम सवाल रिपीट करते हैं कि सवाल ये है कि अल्लाह का घर है, कोई भी मस्जिद हो, कोई मस्जिद हो या कोई मस्जिद, और कोई उसको ढाने के लिए जा रहा है, तो क्या हम उसको बचाने के लिए हम जा सकते कि नहीं जा सकते? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हम एक कानून से बंधे हुए हैं। जिस मुल्क के अंदर हम रहते हैं वो एक कानून संविधान है।
हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। अगर उसके खिलाफ जाते हैं तो हम देशद्रोह का मुकदमा हमारे ऊपर चले, क्योंकि हम कानून पर नहीं मान रहे हैं। बात समझ आ रही है? तो अल्लाह ताला ने इसीलिए कहा वालमू, और जान लो। जानने का माना क्या है? इल्म और हिकमत। इल्म और हिकमत बहुत बड़ी चीज है कि हम इल्म और हिकमत अल्लाह से मांगे कि अल्लाह हमें तो इल्म दे और हिकमत दे, मसलहत दे कि कोई भी काम हम मसलहत के तहत कर सकते हैं। जो तोड़ने का जो मामला हो रहा है, ये कानूनी प्रतिक्रिया है, कानून के हिसाब से हो रहा है, चाहे वो झूठ के बुनियाद पर ही कानून का फैसला क्यों ना है, लेकिन असल में ये एक फैसला है जो अदालत का फैसला है। और एक हिंदुस्तानी शहरी होने के नाते हम कभी भी अदलिया की मुखालफत नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मामला ऐसे हैं जहां पर